Hello everyone, welcome to the channel CSC Scholar Studies. In this lecture, I will discuss about the elimination of epsilon transition or epsilon moves. In the previous lecture, I have discussed about the epsilon NFA, what is the epsilon NFA and what are the benefits of epsilon transition. So, for the previous lecture, or to know all about the epsilon and epsilon transition in NFA. In this lecture, I will discuss how to remove the epsilon transition in any given epsilon NFA. So there are different steps. So how to remove the epsilon transition, and suppose there are any NFA in which one state is Q0 and Q1 and the transition epsilon comes from Q0 to Q1. हमको इस epsilon transition को remove करना है और these are the steps we use for the removing this epsilon. So the first step is फाइंड ऑल एजेस स्टार्टिंग फ्रॉम Q1 मीन्स आपका सपोज यहाँ Q0 से Q1 पे एप्सिलॉन ट्रांजिशन है और हमें इसको रिमूव करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट ऑल द एजेस स्टार्टिंग फ्रॉम दिस स्टेट मीन्स इससे जो भी स्टेट्स आ रही है राइट एनी उसको हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है डुप्लीकेट एजेस टू Q0 विदाउट चेंजिंग एज लेवल मीन्स विदाउट चेंजिंग इनपुट वैल्यू मीन्स हमको इससे जो भी स्टेट्स पे ट्रांजिशन हो रहा है एट द टाइम ऑफ एप्सिलॉन रिमूव वी डुप्लीकेट ऑल द एजेस फ्रॉम Q0 मीन्स सपोज यहाँ से कोई A है B है तो यहाँ पे C है तो हमारा ये किसी पर्टिकुलर स्टेट पे जा रहा है तो हम यहाँ से इसको A B सारे यहाँ से हम एक डुप्लीकेट ट्रांजिशन करेंगे आफ्टर रिमूविंग द एप्सिलॉन. And next third step is if Q0 this Q0 is the initial state then make Q1 is also initial means अगर आपका Q नॉट इनिशियल है तो आप इसको भी इनिशियल बनाओगे एट द टाइम ऑफ एप्सिलॉन रिमूवल. एंड नेक्स्ट स्टेप इज if Q1 is this state is the final state then make Q0 is also final state right अगर आपकी ये फाइनल होगी तो. And next fifth point is remove all dead state. After removing this epsilon transition, if any dead state comes in the NFA, then remove the all dead state after removing the epsilon transition. So these are the steps which you remember at the time of the epsilon transition. This is more clear at the when we solve the question. And suppose there is an example how to remove the epsilon transition. Suppose this is an example. According to the steps, first step is find the all epsilon transition and all the edges from the this state right because आपका जो epsilon transition है वो कहाँ पे आ जाए Q1 पे आ रहा है. सपोज ये 1 स्टेट मान लो ये 2 स्टेट मान लो तो हमारी जो 2 पे जो भी आउटगोइंग एजेस है उसको डुप्लीकेट करना है राइट. फर्स्ट स्टेप है. तो हमारी Q1 से कौन कौन सी एजेस निकली है 1 और 0. पहले तो हम दोनों स्टेट लिख लेते हैं Q0 Q1 इज द फाइनल स्टेट और Q0 इज द इनिशियल स्टेट राइट. तो हमारा डुप्लीकेट करना है किस किस को जो भी एजेस Q1 से जा रही है 1 जा रही है 0 जा रही है तो मतलब हमारी एक यहाँ पे 1 जाएगी और एक 0 जाएगी जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप हो जाएगा राइट. एंड नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या है कि अगर आपकी ये स्टेट इनिशियल है तो हमारी ये भी इनिशियल बनानी होगी. तो इस क्वेश्चन में क्या है ये इनिशियल है तो हम इसको भी इनिशियल बना देंगे. फोर्थ पॉइंट क्या है अगर Q1 फाइनल है तो हम Q0 को भी फाइनल बना देंगे मीन्स जो ये फाइनल है इसमें Q1 तो हम इसको भी फाइनल बना देंगे राइट. और बाकी जो 1 का Q0 का है 0 तो एज इट इज रहेगा. So this is the NFA after removing the epsilon. There are two initial state and there are two final state. So suppose this is another example of epsilon NFA. Here we remove the epsilon. In this question there are two epsilon right.
First, we remove this because we start from the last epsilon transition. We can also remove first this, but at the first to remove this transition, the question is become very complicated. So the easiness is remove the last epsilon first. So first we will write the states q0, q1 and q2. फर्स्ट पॉइंट क्या है कि हम इसकी कितनी एजेस हैं वो फाइंड आउट करेंगे, और हमारा ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 स्टेट। तो इसका एक ट्रांजिशन है 2 का, तो हम यहाँ पे रिमूव करने के टाइम पे एक 2 का दिखा देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ Q2 जो स्टेट है उस पे 2 का ट्रांजिशन है, एंड एप्सिलॉन रिमूव कर देंगे। थर्ड पॉइंट क्या था? Q1 इनिशियल है, नहीं है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्या था? Q2 फाइनल है, तो इसको भी फाइनल बना देंगे, तो इसको भी हम फाइनल बना देंगे। ओके, नेक्स्ट है, यहाँ पे 2 का तो वही है, और इसको ये 0 है। नेक्स्ट अब इसको रिमूव करते हैं। अब वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट स्टेट ये हो जाएगी, सेकेंड ये हो जाएगी, राइट। इसको रिमूव करेंगे तो इससे आउटगोइंग एजेस क्या क्या है? 0 है, 2 भी है। अब नया अब हो गया है, तो 2 भी है, 0 और 2 दोनों को कंसीडर करेंगे, तो यहाँ से जाएगा एक 0, और 2 कहाँ पे जा रहा है? 2 पे जा रहा है, तो 2 कहाँ जाएगा? 2 पे जाएगा। एनी अदर मूव है यहाँ पे? नहीं है। 0 और 2 का 2 मूव था, दोनों हो गया। ओके, अब यहाँ पे एक ऑलरेडी ये 0 का दिया हुआ है ये। और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमें देखना होता है कि 1 इनिशियल है क्या है, तो मतलब ये भी हमारी इनिशियल हो जाएगी, ये है तो। नेक्स्ट क्या होता है? ये फाइनल है क्या? 2 वाली 2 फाइनल है, तो 1 भी फाइनल हो जाएगी, Q0 भी फाइनल हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है कि कोई डेड स्टेट तो नहीं है इसमें। डेड स्टेट तो नो, देयर इज नो डेड स्टेट। सो दिस इज द NFA after removing the epsilon transition. So this is the steps we need to remember at the time of removing the epsilon transition. So these are the example how to remove the epsilon transition or epsilon moves in the epsilon NFA. So thank you.